नमस्कार। इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी की आयुष समृद्धि ज्ञान गंगा के आज इस पड़ाव पर, तो वो भी 3063वें पड़ाव पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर M.K. साहनी सर, पास्ट चेयरमैन एजुकेशन कमेटी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ डिपेंड होम्योपैथी करेगा। फ्रॉम पटना। चलो वेलकम सर। प्रोफेसर S.P. सिंह, प्रिंसिपल SKRP, गुजराती होम्योपैथिक कॉलेज इंदौर, welcome. And I will be welcoming Dr. Rakesh Gupta ji, senior homeopathic expert from Sanjeevani Chikitsalaya, Prayagraj. And I will be welcoming Dr. Lobna Kamal and Dr. A.K. Dwivedi ji, both. So both will be attending. So first of all, without wasting much time, I would like to request Dr. Mridul Sahni ji. He is busy on other phone, I hope. Dr. Mridul Sahni ji, are you comfortable, sir? Please unmute. You are muted, sir. We are unable to hear you. Please unmute. Yes, So, yeah, I am able not to know. Yes, sir. welcome, sir. Welcome, sir. Thank you. Thank you very much, sir. We want you to inaugurate this session, sir. You are our senior most expert. Welcome, sir. Welcome. Welcome, Dr. Lubna also. Welcome, Kamal ji. So, Dr. Mridul Sahni, sir. Thank you, Dr. Pawanji. And I see the galaxy of participants here, like our very old friend, Dr. S.P. Singh, Dr. Lubna Kamal ji, Rakesh Gupta ji, and many more are there. And I hope many will join in due course. So, how do you all feel today on this 271st birth anniversary of homeopathy? Friends, this afternoon, I had a meeting talking on about the subject was where homeopathy was born. We know that Dr. Henneman was born in Mission, and thereafter he discovered the medicines. So at what place actually and in which year actually we can demarcate that homeopathy was established? While going through the several literatures, especially the Bradford's Life and Letters of Homeopathy and Richard Hale 2-volume Life and Letters of the Homeopathy, the Henneman, there I observed right from in the beginning era, before, after in 1800th century, he had to travel and shift at several places, the different parts of the country, sometimes in one place, sometimes another. And during all those periods, we can say it was the formative stage for the homeopathy. So we cannot demarcate that homeopathy was born at Cochin. Yes, Dr. Henneman practiced at Cochin. Henneman was got so much reputation at the Paris, but all these things were achieved due to the work that he has done earlier during the Targau and this other places and that was the most struggling period for Henneman because he has to suffer from the financial hardship. He has to suffer from the criticism from the colleagues and the people, and so much non-acceptance, and people were laughing and making joke about him. So this was the tremendous things and contributions
for this. So we are greatly proud that this man who has stand everything on this planet has given us such a wonderful system of the medicines. I think this is the best. This is only because he worked on the nature, and this was the things that he has already tried. So, friends, it is very much important that we must be have a gratitude for this great man, and today on the auspicious occasion of Homeopathy World Homeopathy Day, the entire country is celebrating the World Homeopathy Day, and now the credit goes to the India only. The Ayush Ministry. I understand that during my tenure at the Central Council of Homeopathy, one of our colleague, Dr. Anirudh Verma, who is no more, he initiated the slogans about having a World Homeopathy Day. And this was gradually caught the attention of the ministry, and it was finally declared as a World Homeopathy Day. So earlier we had been celebrating as a Hahnemann's birthday, and thereafter, when it was recognized by the ministry, Government of India, we are celebrating World Homeopathy Day, and now it has become popular to every corner of the world. Today we have gathered not only to celebrate a system of medicines, but to honor a philosophy that resonates with the eternal principle, similia similibus curantur. Let like be cured by like. This principle, introduced by great visionary Dr. Samuel Hahnemann, is not merely a therapeutic guidelines, but a profound reflection of the nature's intrinsic intelligence. Homeopathy stands apart because it does not merely suppress the disease, rather it seeks to understand the individual in totality, mind, body, and spirit. It recognizes that disease is not just a physical disturbance, but a dynamic imbalance of the vital force. By administering remedies that mirror the patient's symptoms picture, homeopathy gently stimulates the body to heal itself. In today's rapidly evolving world, where lifestyle disorders, stress, and chronic disease are on the rise, the relevance of homeopathy has become even more significant. It offers a safe, gentle, and holistic approach, free from harmful side effects, making it especially valuable in long-term care and preventive health. So, on this special day, we must also have to reflect our own responsibility as practitioners and students of this noble science. Homeopathy is not just a profession, it is a commitment to humanity. It demands keen observations, deep empathy, and unwavering dedications to the principle led by Dr. Hahnemann. I would like to express my heartfelt gratitude this forum, which is conducted by Dr. Pawanji, the Ayush Samriddhi Forum, for recognizing the efforts through this platform. These felicitations and this inaugural program is not just a personal honor, but reminds the responsibility that we should carry meaningfully to this science. Let us all pledge today to uphold the purity of homeopathy, to continue learning, researching, and practicing with integrity, and to spread its benefit in every corner of the society. Friends, in conclusion, I would say homeopathy is not just a medicine. It is a harmony with nature, it is a healing with compassion, and it is a journey towards the true wellness. And I thank you once again for this honor, and I wish you all a very happy World Homeopathy Day to all. So friends, it is a great honor for me to inaugurate these sessions, and with these words, I inaugurate the sessions
I welcome all for this on this great platform. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Your blessings are always requested. And we are also conducting various webinars on clinical subject. Just for sake of example, on 18th, Adult Autism Day is there. On 11th, World Parkinson Day is there. So we need your blessings. Please recommend suitable, experienced speakers for the topic, clinical topic minimum. Please bless us. Please bless us, sir. You are encyclopedia of homeopathy. Definitely, sir. We'll do it, sir. Thank you, sir. Thank you. So I would like to request now Dr. S.P. Singh, sir. Welcome, S.P. Singh, sir. Welcome. सभी को प्रणाम। आदरणीय साहनी जी को सादर चरण स्पर्श। सभी होम्योपैथ को सादर प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय पवन शर्मा जी को कि बड़े स्नेह से, बड़े अधिकार से अपनी बात कहते हैं और कहते हैं जय हो, आपने स्वीकार कर लिया। तो आपने मुझे स्वीकार किया। क्योंकि साहनी जी ने सारी बातें बता दी जितनी होम्योपैथी के लिए थी। कुछ पॉइंट जैसे कि एक भगवत गीता में हम कहते हैं कि कृष्ण और उनके उपवाद सुने जाएं अर्जुन के। मास्टर हनीमैन ने बहुत संघर्ष करने के बाद एक ऐसी चिकित्सा व्यवस्था तैयार की जो स्वयं के ऊपर प्रूव की गई। आज का इरा कहता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो उस समय डॉक्टर हनीमैन ने स्टार्टिंग खाली हुई कि सिंकोना बार्क इफ anyone can take, it will reduce the malaria like fever because of its bitterness. यही एक कारण था कि उनके दिमाग में आया कि because of its bitterness मलेरिया ठीक नहीं हो सकता। उन सब बातों पे हमें नहीं जाना है, लेकिन हमें ये जाना है कि ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन जो लिखी गई, जो होम्योपैथी की बैकबोन कही जा सकती है, लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट मटेरिया मेडिका बताती है, लेकिन हाउ टू प्रेस्क्राइब and when to prescribe, how many dose is required, ये सारी बातें हनीमैन ने अपनी उस लिटरेचर में लिखा। इसीलिए उनके लिए कहा जाता है डेयर टू बी वाइज। तो बहुत से मिथ आज भी कहे जाते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट कहे जाते हैं, मुझे उस पर अभी नहीं जाना है, लेकिन कुछ एफोरिज्म पर मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा जो सबके लिए जरूरी है। कि उन्होंने पहली बात लिखा एक फिजिशियन के लिए, चूंकि आज हनीमैन डे है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, हर होम्योपैथ को इस पे संकल्पित होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए कि उनकी गाइडलाइन बराबर हो। उन्होंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज के पहले कहा कि मिशन क्या होता है, द हाई एंड ओनली मिशन ऑफ फिजिशियन टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा किसी फिजिशियन को, आज के दिन हमें समर्पित होना होगा कि हम होम्योपैथी के लिए कैसे अपने आप को आज के परिवेश में एविडेंस बेस्ड पर बात करें। उन्होंने हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर के बारे में कहा कि द रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और एनिलेशन ऑफ डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट हार्मलेस रिलायबल वे विच इज बेस्ड ऑन इजीली कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल। बिना किसी सिद्धांत के आधार पर दी गई दवा का कोई औचित्य नहीं होगा, और जितनी जल्दी से जल्दी हम किसी रोगी के रोग को दूर कर सकें, ये हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसको कष्ट ना पहुंचाया जाए, लेकिन सिद्धांत के आधार पर हो और सिद्धांत ऐसा हो जो आसानी से समझाया जा सके। इसीलिए लॉ ऑफ सिमिलर, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम की बात की गई। समानता का सिद्धांत हो, न्यूनतम का सिद्धांत हो, एक का सिद्धांत हो। एट ए टाइम ओनली वन मेडिसिन शुड बी प्रेस्क्राइब्ड टू अ पर्सन फॉर गेटिंग क्योर, और ये जाना जा सके कि उसका इफेक्ट भी हो रहा है। लेकिन एफोरिज्म 3 में उन्होंने कहा कि यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द डिजीज। एफोरिज्म 3 में कहा गया द प्राइम ड्यूटी ऑफ ए फिजिशियन टू अंडरस्टैंड द डिजीज, नोन द मेडिसिन एंड अप्लाई देम अप्रोप्रिएटली। मेडिसिन का सिलेक्शन, सिम्टम तो सभी सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट एक्यूरेट मेडिसिन का सिलेक्शन करना ये जरूरी है।
होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जिसमें कहा गया परसीव ए मैन हु इज सिक, जानो बीमार कौन। बीमार शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ मन और शरीर का जब तक योग नहीं होगा, ये वाइटल फोर्स का, वाइटल प्रिंसिपल का कंसेप्ट है। तो एक होम्योपैथ को मन और शरीर को देख करके करना होगा। जैसे कि हम जब कोई पेशेंट को दवा देते हैं, उसकी सारी लेबोरेटरी जांच में सब कुछ नॉर्मल आता है, उसके बावजूद भी पेशेंट को नींद नहीं आ रही, उसको तकलीफ है, उसका दर्द है, तो ठीक नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है, डॉक्टर हमारे कहते हैं कि साइकोलॉजिकल ओपिनियन लेना चाहिए। होम्योपैथी बिलीव दैट, होम्योपैथ को ये समझाया जाता है, होम्योपैथी ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी पर बात की गई है। तो एफोरिज्म 5 कहता है द कॉज ऑफ डिजीज एंड द पेशेंट इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक मस्ट बी कंसीडर्ड, विदाउट द रिमूवल ऑफ कॉज यू कैन क्योर योर पेशेंट। तो काज का सर्च करना, कारण की खोज करना सबसे पहले है। मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह 3 दोष बताए गए, बात पित्त कफ, उसी तरह मास्टर हनीमैन ने कहा कि सोरा सिफिलिस साइकोसिस, ये ऐसे 3 दोष हैं जिनके गड़बड़ होने से, जिनकी कमी होने से व्यक्ति बीमार होता है। तो कारण की खोज जरूर होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शरीर की रचना, इसको चलाने वाला एक पावर है जिसको वाइटल फोर्स कहा गया, और वाइटल फोर्स एनेमिकल डायनामिक मार्बिड कॉज के अगेंस्ट में वर्क करता है, जो कि इममेटेरियल इनविजिबल वाइटल डायनामिक्स है, जो स्पिरिट लाइक है। तो कोई भी बीमारी अगर आती है, उससे वो तभी बीमारी अंदर प्रवेश कर पाएगी जब हमारी, जिसको आज कहा जाता है इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी। होम्योपैथी बिलीव ऑन दैट पॉइंट कि इफ यू आर वीक, मीन्स मेंटली फिजिकली यू आर वीक, आपका वाइटल फोर्स कमजोर है, तो उस पर बात होगी। तो कहा गया है कि डिजीज इज ए नॉट ए मटेरियल एंटिटी बट इट्स ए टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। होम्योपैथी कहती है कि सिम्टम इज आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनली डेविएटेड वाइटल फोर्स। बहुत क्लियर कट उल्लेख किया गया है होम्योपैथी में कि जो कि इसेंस है, जो अंदर की सारी तकलीफ है, वही बाहर आती है, क्योंकि वाइटल फोर्स एक इममेटेरियल है, बॉडी के थ्रू सारे सिम्टम्स आएंगे। एफोरिज्म 83-84 में गाइडलाइन दी गई हाउ टू रिकॉर्ड सिम्टम्स ऑफ ए पेशेंट, केस टेकिंग के बारे में कहा गया है। एफोरिज्म 18 कहता है द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इज द ओनली गाइडिंग द सेलेक्टिंग ऑफ रेमेडी। अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कोई फिजिशियन नहीं बना पाता है, तो वो अपने पेशेंट को ठीक भी नहीं कर पाएगा। एंड टोटलिटी does not mean the sum total of the symptom. A logically combined symptom is called totality of symptoms. तो location, sensation, modality, concomitant symptoms make the totality of symptoms. ये ध्यान रखना होगा। हमने मेडिसिन सेलेक्ट भी कर लिया, लेकिन अगर पोटेंसी का सिलेक्शन सही नहीं हुआ, तो भी हम ठीक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एफोरिज्म 18 में उल्लेख किया गया टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज द ओनली गाइड टू सेलेक्टिंग द रेमेडी। सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर पर ध्यान देना होगा। एफोरिज्म 27 कहता है ओनली द लॉ ऑफ सिमिलर इंश्योर रैपिड जेंटल एंड परमानेंट क्योर। 275 से 278 एफोरिज्म तक लिखा गया है यूज द मिनिमम डोज, एक्सेसिव डोजिंग मे बी हार्मफुल, द पोटेंसी ऑन द डोज शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी पिक्यूलियर विचारधारा है। एट अ टाइम ओनली वन मेडिसिन शुड बी प्रेस्क्राइब टू अ पर्सन, ओनली वन मेडिसिन टू बी एक्ट। इसलिए इस बात पर भी हमें ध्यान देने के लिए गाइडलाइन कही गई है। Potency and dose should be individualized according to the patient, according to the nature of the patient, according to the sensitivity of the patient, their pathological entity। ये सब इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि 7,000 लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जिनको होम्योपैथी के बारे में बहुत सी चीजों को जानना भी है। इसलिए हमारे होम्योपैथ तो सब जान रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की भी जानकारी देनी चाहिए कि उसकी एक्टिविटी क्या है। एफोरिज्म 157 में कहा गया कि इनिशियल एग्रावेशन, होम्योपैथिक एग्रावेशन में इंडिकेट द रेमेडी इज एक्टिंग। यहाँ एक होम्योपैथी के लिए, होम्योपैथ के लिए एक विचारधारा बन गई है। कहते हैं कि होम्योपैथी पहले बीमारी को बढ़ाती है,
फिर बीमारी को कम करती है। यह एक भ्रांति है, इस पर सजग रहना होगा। किसी कारण से अगर पोटेंसी का सिलेक्शन गलत हुआ, मेडिसिन का सिलेक्शन गलत हुआ और एग्रेवेशन होगा, तो जरूरी नहीं है कि बीमारी बढ़ाई। जब बीमारी बढ़ती है ड्यू टू रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन, रॉन्ग केस टेकिंग, इम्प्रॉपर केस टेकिंग। एफोरिज्म 72 782 तक कहा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, एंड क्रॉनिक डिजीज रिक्वायर डीपर एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। अक्सर कहा जाता है होम्योपैथ के लिए, आयुर्वेद में कहा जाता है ये खाना नहीं खाना, ये खाना नहीं खाना। होम्योपैथी आज की विचारधारा में ये बताना जरूरी होगा कि देयर इज अ डिफरेंट सिस्टम, और ये कहा गया है मेडिसिन ओरिएंटेड डाइट एंड डिजीज ओरिएंटेड डाइट पर विचार करना आवश्यक होगा। कुल मिलाकर के आज के दिन हमें तो यही कहना होगा, हमारे होम्योपैथ को ये कहना होगा कि क्लिनिकली अर्गनान को ध्यान में रखना होगा। इंडिविजुअलाइज केस टेकिंग इज इम्पोर्टेंट, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इज इम्पोर्टेंट, लॉ ऑफ सिमिलर शुड बी मैंडेटरी, प्रेस्क्राइब द मिनिमम डोज, एंड केयरफुल फॉलो अप होना जरूरी है। और कॉज को रिमूव करें, स्वस्थ जीवन शैली अडॉप्ट करें। स्वस्थ जीवन शैली सबके लिए है, मन को देखें, शरीर को देखें, यही कॉन्सेप्ट होम्योपैथ का है, यही होम्योपैथी के लिए है। यही अगर हम सब करते रहेंगे तो मास्टर हनीमैन जो एक एलोपैथिक चिकित्सक थे जिन्होंने होम्योपैथी की इजाद की है, उनको भी इस बात को समझ में आएगा कि होम्योपैथ आर डूइंग वेल, दे आर प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी, दे आर ओनली प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी। यही कह करके मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद, सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार सिंह साहब। कल पार्किंसंस डे है, तो यस मैं सर। चाहता था उसमें होम्योपैथी का भी प्रतिनिधित्व रहे, तो आपकी कृपा होगी। सर सर, आदेश थैंक आदेश। यू, थैंक यू सर। मैं अब डॉक्टर लुबना कमाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर लुबना जी, वेलकम। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड। सभी को मेरा सादर प्रणाम और सलाम। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर हैविंग मी हियर among your galaxy of speakers and some very eminent ones, very senior ones. सानी सर हैं, हम उनके सामने हम क्या ही बोलें, सब कुछ बोल चुके हैं सर। तो थोड़ा बहुत जो मुझे आता है मैं बताने की कोशिश करती हूँ। सो आई ओ माई लाइफ टू होम्योपैथी। मेरी लाइफ उसी से बची। मैं 3 या 4 साल की थी और मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, और इलाहाबाद और लखनऊ के सारे पीडियाट्रिशियंस फेल हो गए थे। कोई फीवर जो है वो ठीक कर ही नहीं पा रहा था, 106 तक फीवर हो जाता था। और उसके बाद हमारे फादर जो हैं वो कभी ऑफिस में अपने रो रहे होंगे, तो उनके सीनियर ने पूछा उनसे क्या हुआ। विजय कुमार उनका नाम था, साउथ इंडियन थे, इंजीनियर थे, बहुत सीनियर, मेरे फादर के सीनियर थे। तो उन्होंने पूछा तो मेरे फादर ने बताया कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने आकर के मम्मी से पूछा, पूरी केस हिस्ट्री पूछी मेरी, और फिर एक इम्पॉर्टेंट क्लू उनको मिला। मम्मी ने बताया कि जब इसको फीवर होता है तो ये कबाब पराठे मांगने लगती है, कहती है कबाब पराठे दो, तो हमें समझ में आ जाता है कि इसको फीवर इसका बढ़ने वाला है। और हम इसको पहले से ही दवाई दे देते हैं, पैरासिटामोल बहुत मतलब लीटर्स के हिसाब से हमने पी है। तो उस सिम्टम पे उन्होंने हमें नक्सवामिका दी और बोला, मना किया कि कोई एलोपैथिक दवाई अभी देनी नहीं है। और बस उसके बाद फिर बहुत तेजी से मेरा बुखार बढ़ा, 106 हुआ फिर से, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके अपने आप से ही कम होता गया। और उसके बाद से मतलब रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं ठीक हूँ, आज तक बिल्कुल ठीक हूँ। तो आई ओ माई लाइफ टू होम्योपैथी, एंड इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिलता ये स्टोरी शेयर करने का। और मेरे उसके बाद से सबने होम्योपैथी हमारे यहाँ लेना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरा एमबीबीएस के प्राइवेट कॉलेजेस में हो भी रहा था एडमिशन, बट आई टुक होम्योपैथी। और उसके बाद नेफ्रोलॉजी में आ गई, क्योंकि मेरा एक कजन था, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम था। वो बचपन से बहुत बीमार रहता था, खेल नहीं पाता था हम लोगों की वजह से, बिकॉज उसको इतने स्टेरॉइड्स दिए गए कि उसको रिपीटेड फ्रैक्चर्स हो जाते थे। तो वहां से कहीं ना कहीं वो हुआ कि नेफ्रोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे उसके लिए कुछ करना है और किडनी के पेशेंट्स के लिए कुछ करना है। सो अभी
मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि 80 countries, more than 80 countries of the world recognizes homeopathy, and there are more than 200 million people globally who use homeopathic medicines regularly, and there are over 10 crore people in India who are using homeopathy. There are more than 200 homeopathic medical colleges and more than 8,000 government dispensaries. और ये उसके बावजूद है कि मतलब इस सब के बावजूद भी हमको प्लेसिबो थेरेपी बोला जाता है, और कभी ये कहा जाता है कि हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो है वो स्टेरॉइड्स मिला करके दे देते हैं. So which is absolutely untrue. Homeopathy is the safest mode of treatment and absolutely without side effects. और अगर हम कॉस्ट को भी देखें होम्योपैथिक मेडिसिन को, तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक जो बर्डन है वो ईज आउट हो सकता है. सो इफ अ पेशेंट visits an allopathic doctor, the cost of an average cost of visit is 76.9 rupees per patient per visit. While in homeopathy, it is 15.3 rupees per patient per visit. So there is absolute almost 80% of cost reduction. So अगर हम इसको global healthcare spend से compare करें, इसको analysis करें, so there is almost 8 to 9 trillion dollars which are spent on health year globally. And अगर हम इसको 80%, क्योंकि हमारा कॉस्ट सेविंग हो रहा है होम्योपैथी से, अगर हम इसको 10 या 20% भी कॉस्ट रिडक्शन करते हैं, तो इट कम्स टू अराउंड 400 to 900 billion dollars per year. So this is the amount of money which can be reduced worldwide, and it is very important for countries like India and other developing countries. So I would like to close my statement on this World Homeopathy Day by saying that homeopathy needs to be more popularized, and as homeopathic doctors, we need to work little more harder to take homeopathy further to masses. Thank you very much. थैंक यू लुबना जी, थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत ही सही बातें कही. ये आज हम लोगों का ही दायित्व है कि पश्चिमी सभ्यता को बताएं कि नहीं, ये हमारा मैन है और सेफ है. बहुत अच्छा बोले आप. 80 कंट्री हमको रिकॉग्नाइज जब कर गई हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम में दम है. हम प्लेसिबो नहीं है. वी आर नॉट प्लेसिबो एट ऑल. मैं अब डॉक्टर राकेश गुप्ता जी को सादर आमंत्रित करता हूं. डॉक्टर राकेश जी. सभी को सादर प्रणाम. और साहनी सर को चरण स्पर्श. बहुत कुछ सीखा है साहनी सर से. तो हमारे इतने सीनियर सभी सब पहले बोल चुके हैं होम्योपैथी के बारे में. तो होम्यो उसके लिए तो बोलने के लिए कुछ बचा नहीं. मैं कुछ बोलना चाहता हूँ उस पर्सनालिटी के बारे में, डॉक्टर हनीमैन के बारे में, उस मनीषी के बारे में जिन्होंने क्रांति कर दी. ऐसी क्रांति की कि मतलब मैं थोड़ा छोटा सा स्लाइड है मेरा दिखाना चाहता हूं. तो सबसे पहले हम भगवान गणेश जी को प्रार्थना करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. भगवान धन्वंतरी हमारे जो मेडिसिन के देवता हैं उनको प्रणाम करते हैं. फिर डॉक्टर हनीमैन को हम प्रणाम करते हैं. ये वास्तव में डॉक्टर हनीमैन कोई पिछले जन्म में कोई मनीषी ही, कोई ऋषि ही रहे होंगे, क्योंकि ये जो काम इन्होंने किया है कोई साधारण इंसान कर ही नहीं सकता. अभी मैं जब इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा तो बड़ी हैरानी होगी कि कोई एक आदमी अपने जीवन काल में इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे कर सकता है. तो जैसे सामान्य लोगों की होती है, इनकी भी बचपन ऐसे ही रहा. और चूंकि ब्रिलियंट बहुत थे तो फटाफट हर जो है इनका होता गया. एमडी भी किया इन्होंने एलोपैथ में, और करीब 10 साल तक सर ने प्रैक्टिस की. इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड सर. और बहुत अच्छी पोस्ट भी इनको गवर्नर के
चिकित्सक के रूप में भर्ती हुई, अच्छी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस भी चल रही थी, लेकिन ये बहुत निराश थे। जो उस समय की प्रैक्टिस थी सर, अनसाइंटिफिक थी, कि बस ब्लड प्रेशर हो गया तो खून निकाल दो और इसको ब्लिस्टर बना दो, परगेटिव दे दो, इसको जो है उल्टी करा दो। मतलब कोई साइंटिफिक कुछ नहीं था कि कोई चीज कैसे ट्रीट करना है। तो ये ठीक तो करते थे, लेकिन को होता था कि यार मैं ठीक तो कर रहा हूँ पेशेंट, लेकिन ये फिर कुछ दिन बाद लौट के आता नई तकलीफ लेके। तो ये ठीक करना थोड़े हुआ, जो मैं कर रहा हूं उसके साइड इफेक्ट से वो फिर कुछ आ रहा है नया लेके। भाई क्योर ये तो नहीं हो सकता ना कि बार बार मरीज बस परेशानी रहे। और मतलब ऐसी कंडीशन थी कि उस समय लोग बोलते थे कि भैया ना इलाज कराओ, ज्यादा बेहतर है इलाज कराने से, क्योंकि उसके बाद तो और तकलीफ होती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। द क्योर ऑफन वर्स देन डिजीज, मतलब जितना रोग था उससे ज्यादा तकलीफ वाली होती थी कि मरीज कोई इलाज न कराए, वो कंडीशन थी। तो बड़ी बुरी स्थिति थी मेडिकल चिकित्सक की। तो उन्होंने इससे ऊब के वो धीरे धीरे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि फिर जो है अब हम नहीं कर सकते, ये तो प्रैक्टिस है ही नहीं, ये तो जो डॉक्टर की ड्यूटी है वो है ही नहीं, और मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसकी कमाई नहीं खा सकता। इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन परिवार बड़ा था, कुछ तो करना था। तो अब उन्होंने क्या किया, इंटेलिजेंट बहुत थे डॉक्टर हनीमैन, 12 भाषाओं के ज्ञाता थे सर। ये लोगों को जानना चाहिए, डॉक्टर हनीमैन 12 भाषाओं के ज्ञाता थे। तो अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो उन्होंने जितनी और भी थी उस समय की, ग्रीक, लैटिन, अरेबिक, हिब्रू, इन सब भाषाओं की ज्ञाता क्यों नहीं है सर, कि केवल हम बोलते हैं समझ लेते हैं। उनको ग्रामर की बुक जो है उस भाषा को उसको जर्मन में ट्रांसलेट करते थे और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, एक दूसरे को इंग्लिश के फ्रेंच में, फ्रेंच को इंग्लिश में, लैटिन में, हिब्रू में। तो इस तरह से अपनी आजीविका वो चला रहे थे, परिवार पाल रहे थे। ऐसे करते करते उनका उनकी मैट्रिक को ट्रांसलेट कर रहे थे ये इंग्लिश में। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज, आगे सर। नेक्स्ट स्लाइड कर दिए राकेश जी आपकी। और सर और आप वीडियो बंद कर दीजिए तो आपकी आवाज आएगी। आपके यहाँ अच्छा नेट अच्छा कमजोर है ओके सर। जी। मैंने चेंज कर दिया स्लाइड। थोड़ा और आगे लें सर, स्लाइड और बढ़ाएं थोड़ा। हेलो, हाँ बढ़ाई बढ़ाई देखिए। और आगे सर, और आगे। थोड़ा और आगे सर। हाँ ये। तो अभी क्या हुआ, 1790 में ये ट्रांसलेट कर रहे थे सर। डॉक्टर कुलिन की मिट्रामेटिका थी, बड़ी फेमस डॉक्टर थे डॉक्टर कुलिन उस समय। तो उन्होंने अपनी मिट्रामेटिका में लिखा था एक लाइन कि कुनैन जो है मलेरिया ठीक करता है, इसलिए क्योंकि वो कड़वा होता है, इसलिए। तो ये डॉक्टर हनीमैन को लगा ये तो बात सही नहीं है, भाई कड़वी तो बहुत चीजें होती हैं और सभी तो मलेरिया ठीक नहीं करती हैं। मतलब ये जैसे वो यूरेका वाला मूवमेंट होता है ना, उनको लगा यार कुछ तो है, ये बात ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये खुद इन्होंने डॉक्टर हनीमैन खुद सिनकोना बार लाए और उसको 4 ड्राम सिनकोना रोज सुबह शाम लेना शुरू किया। और जैसे ही लेना शुरू किया 3-4 दिन बाद इनके अंदर मलेरिया के सिम्टम आने लगे डॉक्टर साहब। अब उन्होंने लगा ये तो मिल गया, कुछ है इसमें ऐसा, तो मतलब है कुछ कि भाई जो चीज बीमारी ठीक कर सकती है, इसका मतलब अगर क्रूड फॉर्म में लिया जाए तो वो बीमारी प्रोड्यूस भी कर सकती है। तो सोचा उन्होंने कि शायद ये ऐसा ही हो, चलो हम और ट्राई करते हैं। तो कुछ चीजों की जो उस समय फिक्स दवाइयां थी कि ये चीज इसमें काम करती है, उन्होंने वो ला ला के बारी बारी अपने ऊपर, अपने फैमिली में, अपने मित्रों के ऊपर ट्राई करना शुरू किया और देखा ये तो सबके साथ हो रहा है। सारी मेडिसिन में, सारी जड़ी बूटियों में, सारी औषधियों में से हो रहा है कि जो ठीक करने के लिए ये दवा है उसको हम अगर ले रहे हैं अपने शरीर पे, तो वो मेडिसिन भी वही
बीमारी प्रोड्यूस कर रही है। फिर इन्होंने पूरा लगातार करीब 6 साल तक काम किया। आगे सर, 6 साल तक करीब काम किया इन्होंने। इसके बाद इन्होंने एक हॉफलैंड जर्नल थी, उसमें पब्लिश किया पहली बार इन्होंने, और उसमें उन्होंने पूरा एक ऐसे लिखा, एन एसे ऑन द न्यू प्रिंसिपल फॉर ascertaining द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीवियस प्रिंसिपल्स। और इस तरह उन्होंने एक आगे बनाया सिद्धांत की सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर, लाइक क्योर्स लाइक। तो समः समय समयति, ये हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत भी है सर, आप तो प्रकांड विद्वान हैं, तो कुछ दूर नहीं है आयुर्वेद से होम्योपैथी, बिल्कुल नजदीक है। हम तो समझते हैं सगी बहन है, सगी बहन के आयुर्वेद तो हमारी देवताओं की पद्धति है, और उसमें तो कोई वही नहीं, सारी चिकित्सा पद्धति की जननी आयुर्वेद अगर देखा जाए तो। लेकिन बिल्कुल वहीं से मिलता जुलता है डॉक्टर हनीमैन, देखिए किस तरह से अपनी सोच आगे डेवलप करते हैं। तो सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर लिया, आगे उन्होंने फिर 1805 में एक पहली बुक उन्होंने लॉन्च की, द मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। इन्होंने उसके बारे में जितना जितना कुछ खोजा था अभी तक उसको लिखा। फिर आगे जो सबसे क्रांतिकारी कदम हुआ इनका, नेक्स्ट स्लाइड पर सर, नेक्स्ट स्लाइड सर, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन 1810 में इन्होंने पब्लिश किया पहली बार, इतना रिसर्च करके। ये पूरा मेडिकल जगत में उस समय तूफान मचा दिया, बिल्कुल इनके खिलाफ तो सब लिखने लगे लेख, वो लिखने लगे कि ये तो कुछ नहीं, क्वैक है, और इनको सब इनकी बातें भरोसा ना करो, क्योंकि इन्होंने पूरा फैक्ट लिखा था कि भाई ये चीज हो रही है, ऐसे होना चाहिए। तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पूरा पूरा भूचाल ला दिया, इनके खिलाफ बहुत बातें होने लगी। लेकिन डॉक्टर हनीमैन अपने ऑर्गन के फ्रंट पेज पे जो लिखा था सर, मोटो अभी भी है लिखा हुआ, आरडी सप्पेयर, बिल्कुल मोटे मोटे अक्षर में। इसका मतलब होता है डेयर टू स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि विरोध बहुत हो रहा था लेकिन ये इन्होंने कभी झुका नहीं। और आगे फिर नेक्स्ट स्लाइड सर, 1811 में पहली मेट्रामेट का प्यूरा की फर्स्ट वॉल्यूम इन्होंने लॉन्च किया। जितनी दवाइयां अभी तक इन्होंने अपनी प्रूविंग की थी, ह्यूमन प्रूविंग की थी, उस पर इन्होंने किया। और प्रूविंग सर अभी आगे बताएंगे, इतनी क्रांतिकारी चीज है कि पहली बार कोई मेडिसिन की किसी चिकित्सा पद्धति में ह्यूमन के ऊपर प्रूविंग हुई है। और ह्यूमन के ऊपर प्रूविंग तो अभी क्या है कि जो एनिमल ट्रायल होती है, जितने बड़े अपने आप को मॉडर्न साइंस एलोपैथी की बात होती है, जितनी भी ये सब एनिमल के ऊपर ट्रायल होती है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में ह्यूमन ट्रायल होती है, वो भी केवल देखने के लिए सेफ्टी मेजर वगैरह ये सब। लेकिन जब मेडिसिन की प्रूविंग होम्योपैथी के हिसाब से अगर हेल्दी आदमी में होती है, तो हमको फिजिकल के साथ साथ जो उसके इमोशनल, जो मेंटल जो चेंजेस वहां पे हो रहे हैं ना, डिजायर, एवर्जन, उसका थर्स्ट कैसा है, उसका नीड कैसी है उसकी, बिल्कुल ये सब पिक्चर कहीं नहीं मिलेगा जितने डिटेल में ये पूरी एनालिसिस होती है। और अक्सर हम केवल माइंड सिम्टम पढ़ के ही, बिल्कुल अगर मरीज से बात कर लिए 2 मिनट, मेंटल समझ गए कायदे से, हम उसी पे दवाई दे देते हैं सर, और बिल्कुल सिंगल डोज में ही काम हो जाता है। केवल मानसिक स्थिति, उसके बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का, उसके हाव भाव, चेहरे के भाव कैसी है, उसकी एंजाइटी कैसा लग रहा है, बस इसी पे ही काम हो जाता है। तो ये इतना एनालिसिस डीप किया गया है ड्रग प्रूविंग में। तो अभी डॉक्टर हनीमैन की विरोध खूब हुआ, आगे सब चलते हैं। फिर इनको आना पड़ा छोड़ के वहां से, कोट्टायम में अपनी प्रैक्टिस शुरू किया इन्होंने, लेकिन काम अपना डॉक्टर हनीमैन चालू रखे पूरा, और लगातार प्रैक्टिस करते गए। और फिर 1828 में क्रॉनिक डिजीज, उधर लगातार वॉल्यूम निकल रहा था, वॉल्यूम 1, 2, 3 मेट्रामेट का प्यूरा का। तो लेकिन वो देख रहे थे प्रैक्टिस के दौरान कि सिंपल बीमारियां तो ठीक हो रही हैं, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं ये मुश्किल हो रही है, इसमें रुकावट आ रही है, ये एक सीमा तक जाने के बाद पूरा ठीक नहीं हो पाता, तो चक्कर क्या है। तो फिर इसके ऊपर रिसर्च करने लगे, तो जब उनका पूरा निष्कर्ष निकला तो उन्होंने क्रॉनिक डिजीज लिखी। ये हम लोग के लिए सर बहुत बड़ा वरदान है, जो क्रॉनिक डिजीज ठीक करते हैं डॉक्टर, और इसको अगर हम पढ़ के पूरा समझ लेते, आत्मसात कर लेते, तो हमें बहुत आसानी होती है। अभी हम बात करते हैं कि फंडामेंटल डॉक्टर हनीमैन ने अपने ऑर्गन में, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो लिखा, ये हमारी गीता है, एक होम्योपैथ की गीता ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है, कि जो जैसे डॉक्टर साहब अभी पूरा एफोरिज्म की बात कर रहे थे, इस एफोरिज्म में ये एफोरिज्म बिल्कुल हमको बिल्कुल इतना ज्यादा उसको है, और मतलब वो अगर हमने पूरा अच्छे से पढ़ा है तो मुझे कोई शंका नहीं, मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, कोई भी बीमारी ठीक कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आता है। तो डॉक्टर हनीमैन ने ये 7 सिद्धांत जो दिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स,
इसमें पहला है लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, मिनिमम, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। मैंने इसको रेड कलर से किया सर, ये बड़ी क्रांतिकारी चीज ये भी थी कि जो ड्रग डायनामाइजेशन थी, दवा बनाने की प्रक्रिया, ये बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत है। तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं एक एक करके थोड़ा सा शार्ट में। जैसे पहला है लॉ ऑफ सिमिलिया, तो अभी हुआ था कि बताया था हमने, लाइक क्योर्स लाइक। होम्योपैथी का मूल सिद्धांत ही यही है। होम्योपैथी का मतलब ये सिमिलर सफरिंग। और लोगों को नहीं मालूम होगा, मैं बताना चाहता हूं कि एलोपैथी टर्म ही डॉक्टर हनीमैन ने दिया था। एलोपैथी टर्म डॉक्टर हनीमैन नहीं दिया था। तो होम्योपैथी, तो ये हुआ सिमिलर सफरिंग, लॉ ऑफ सिमिलिया, कि सिमिलर ही सिमिलर को ठीक कर सकता है, परमानेंटली क्योर कर सकता है। दूसरा है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, कि जस्ट वन रेमेडी एट ए टाइम, एक बार में केवल एक दवा देनी है। क्योंकि हमें पूरे पेशेंट की पिक्चर लेनी है, उसकी केस टेकिंग करके वो जो इमेज बनी बिल्कुल सेम मेडिसिन हमको चाहिए, और फिर जरूरत नहीं किसी की, वो सिंगल मेडिसिन अकेले पर्याप्त है क्योर करने में। अगला है लॉ ऑफ मिनिमम, मतलब मिनिमम डोज देना है। हमने मेडिसिन सिलेक्ट भी कर लिया, फिर उसमें हमको बिल्कुल मिनिमम डोज देना है। वन ड्रॉप पोटेंसी वाली मेडिसिन से सर, जो हमारी 40 नंबर की गोली होती है होम्योपैथी की, इसकी 20 गोली उससे चार्ज हो जाती है। अब आप सोचें, यहाँ मैं देखता हूँ अक्सर लोग पोटेंसी वाली मेडिसिन ही 10-10 घूंट 3 बार पीते हैं, पिलाते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे साइनी सर वगैरह है तो कितना मिनिमम डोज देते हैं, ये क्या बताया जाए, ये प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही बिल्कुल मिनिमम डोज, एक गोली बहुत है बस। अगर उसका काम करना है, पिक्चर आपने लिया है, केस टेकिंग किया है, तो सफिशियंट है, उसको क्योर होना ही है। अब मिनिमम डोज के फायदे भी कितने हैं, इसलिए हमारी दवाई कोई साइड इफेक्ट नहीं करती, अनलेस अनटिल कोई मिसयूज ना करे। अगर फॉलो करता ऑर्गन को तो बिल्कुल कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। थोड़ा हमने बताया कि इस मिनिमम डोज का कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट ने कैसे वेरीफाई किया है। तो अभी इसमें समय न लेते हुए आगे चलते हैं सर, आगे आगे सर, थोड़ा और आगे। डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। अब ड्रग प्रूविंग जैसे बताया था हमने कि ये इसको लेने के लिए बहुत हेल्दी ह्यूमन चाहिए, दोनों मेल फीमेल दोनों होते हैं, हर एज के लोगों को लिया जाता है, अभी भी प्रूविंग होती है। और बहुत अच्छे मेडिसिन नई नई आ रही हैं। लेकिन जो हमारे स्टालवर्स करके गए, हमारे मास्टर्स करके गए, उसकी तो बात ही अलग है। इतना डीप एनालिसिस किया गया है एक एक मेडिसिन का। तो ये सब रिकॉर्डिंग की जाती है, पूरी 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 पिक्चर मेट्रिया मेटका में। आगे पांचवा है थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो मैंने बताया कि जब ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर हनीमैन को लगा कि कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है क्रोनिक डिजीज में, पूरा ठीक नहीं हो पा रहा, तो कारण क्या है। फिर उन्होंने इसको खोजा कि इसके पीछे मियाज्म है। जैसे वात पित्त कफ होता है आयुर्वेद का, वैसे ही हमारे होम्योपैथी में डॉक्टर हनीमैन ने खोजा सोरा सिफिलिस साइकोसिस। और सर मैं कभी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। मैं तो बिल्कुल समझता हूँ सोरा वात की तरह से है, सिफिलिस पित्त की तरह से है, साइकोसिस कफ की तरह है। बहुत रिलेशन बिल्कुल मिलता है, क्योंकि मैं सर आपके चैनल पे खुद सीखता हूँ आयुर्वेद को, पढ़ता भी हूँ, कई किताबें भी मंगाई मैंने आयुर्वेद की। तो मैं इसे रिलेट कर पाता हूँ कि सोरा वाती है, सिफिलिस पित्त ही है, और साइकोसिस कफ ही है। तो कभी आगे चर्चा करेंगे सर, मौका मिलेगा। तो इस तरह से इन्होंने फिर कहा कि ये एंटी मियाज्मेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, इनको पहले में दूर करना है। तो जैसे हो सकता है ये तीनों तो सम मात्रा में होना चाहिए, जैसे वात पित्त कफ सम रहे तो ठीक है, किसी के कम ज्यादा होने से बीमारियां होती। ऐसे हमारी हो सकता है सोरा पेशेंट का बड़ा हो तो बीमार हो, सिफिलिस बड़ी हो, साइकोसिस बड़ी हो, या सोरा सिफिलिस मिलके हो सकता है, सोरा सिफिलिस या सोरा साइकोसिस मिलके हो सकता है, या तीनों मियाज डिस्टर्ब हो। तो अगर ये सब डिस्टर्ब है तो हमको उसको सॉल्व करना है, एक एक करके सॉल्व किया जाता है। धीरे धीरे कौन सा प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रोमिनेंट है उसको देख के धीरे धीरे पहले एक दिया। तो ऐसे ही हमको क्रॉनिक डिजीज बहुत आराम से हैंडल करना चाहिए। कई स्टेप में केस टेकिंग करने पड़ते हैं, रेगुलर फॉलोअप चाहिए पेशेंट का, और वो ठीक होता है। नेक्स्ट सर, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। तो हमारे होम्योपैथिक में सर, जैसे हम समझते हैं कि बॉडी माइंड और स्पिरिट, तो वाइटल फोर्स एक स्पिरिट का ही एक तरह से रूप कह सकते हैं। जैसे प्राण ऊर्जा हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में मानती है हमारे शरीर होम्योपैथी की एक प्राण ऊर्जा है जो पूरे शरीर के सारे सब कुछ संचालन कर रहा है। अब इसमें अगर डिस्टर्बेंस होता है, डिसहार्मोनी होती है, नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसे वाइटल फोर्स अगर हमारा
नेचुरल अपने पाथवे में बह रहा है अपना फ्लो, जैसे एक्यूप्रेशर में भी कहते हैं कि ऊपर से नीचे लगातार हमारी कॉस्मिक एनर्जी चलती रहती है, ऐसे ही वाइटल फोर्स है वो फ्लो उसका सारे टिश्यूज में, सारे सेल्स में लगातार चलता रहता है। तो अगर ये नॉर्मल है तो हेल्थ है। अगर इसमें कोई डिरेंजमेंट आया, डायनेमिक कोई इन्फ्लुएंस हुआ, कुछ उसकी पाथवे में डिस्टरबेंस हुआ, तो ये डिरेंज हुआ, मतलब वाइटल फोर्स नॉर्मल से थोड़ा सा डिरेंज हुआ और उसको फिर डिजीज की अवस्था बन गई। लेकिन डिजीज ऐसे नहीं आती, अभी डिजीज बारे में बताते हैं हम आगे सर। तो ये डायनेमिक क्या बोलते हैं, डायनेमिक माने क्या, जैसे मैग्नेट होता है ना उसमें, या मैग्नेट क्या होती, दिखता तो नहीं लेकिन एनर्जी कितनी होती, एनर्जी हो, इमेटीरियल हो, इनविजिबल हो, वो डायनेमिक चीजें हैं कि जो डिस्टर्ब कर देती है। अभी इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे आगे सर, 2-3 स्लाइड बाद ये चीजें। अगला स्लाइड देखें, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। ये सबसे क्रांतिकारी कदम था कि जो डॉक्टर हनीमैन ने इसको खोजा, पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन ऐसी चीज है कि एक साधारण चीज में इतनी एनर्जी उन्होंने भर दी पोटेंटाइज करके मेडिसिन को, कि वो बाकी तो क्रूड फॉर्म में मेडिसिन की बात होती है उसकी पोटेंसी, जिससे पैरासिटामॉल है 250 ग्राम देना मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम या 650 देना, या इंजेक्शन लगाना 1 ग्राम का। होम्योपैथिक में बिल्कुल उल्टा चलते हैं, हमारी जितनी मात्रा कम होती जाएगी उतनी पोटेंसी बढ़ती जाएगी, जितना मटेरियल कम होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती जाती है। सिंपल कॉमन साल्ट जो नमक है, चारकोल है, जो बालू है, सिलिका, इससे इतनी चमत्कारी दवाइयां बनती हैं, और जितना पोटेंशियम बढ़ाते जाते हैं मात्रा तो कम होती जाती है लेकिन उतना ही पावरफुल, उतना ही डीप एक्टिंग वो होता है और उतने समय तक काम करता है। जैसे हमने 10 mg की दवाई दिया तो 1 महीने 2 महीने हो सकता है, 3 महीने 6 महीने कुछ हमको करना ही ना पड़े, उतना वो डीप एक्टिंग होता है, इतना लेवल तक काम करता है। इवन अगर स्टारवर्ड्स तो बोलते हैं, अब तो प्रूफ भी हो गया, हम लोग खुद देखते हैं हमारी दवाइयां जो डायनेमिक दवाइयां पोटेंटाइज होती है वो डीएनए रिपेयर करती है सर। नैनो टेक्नोलॉजी तो पता नहीं कहा, उसके आगे बहुत बात होती है, इतनी डीप एक्टिंग है ये। आगे चलते हैं सर। तो 2 तरह का ये है मेन टाइम थोड़ा पोटेंटाइजेशन की प्रक्रिया। क्या सर टाइम की दिक्कत है क्या कुछ? नहीं, थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए। तो अभी जैसे अभी भी ट्रांसलेशन 50% सक्सेशन, स्लाइड। ट्रांसलेशन माने अगर इनसॉल्युबल है तो ट्राइट्रेशन करेंगे, सक्सेशन माने अगर सॉल्युबल है तो करेंगे उसको हम, इस तरह से दवाई बनाते हैं। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि हमारा जो फिजिशियन का मिशन, डॉक्टर हनीमैन ने मिशन ही क्यों लिया, उन्होंने प्रोफेशन नहीं कहा, मिशन। मिशन माने फिर आप हार्ट और माइंड से लेके पेशेंट की बात करेंगे, और इसी तरह हेल्थ की परिभाषा है। आगे चलते हैं सर कि अब हम थोड़ा सा, क्योंकि हो नहीं पाएगा, हम थोड़ा सा और इसके अलावा बोलना चाहते हैं। डॉक्टर हनीमैन को केवल हम लोग ये मत समझे कि फादर ऑफ होम्योपैथी है, वो तो है ही है, इसके अलावा फिर उन्होंने इतना काम किया है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे मेडिसिन के ही 5 ब्रांचों में उनका पूरा अधिकार था। मेडिसिन को तो खोजा ही उन्होंने, एमडी खुद थे, होम्योपैथी का आविष्कार किया, टॉक्सिकोलॉजी में उनका बहुत बड़ा काम है सर। तो काफी सारी मेडिसिन की टॉक्सिकोलॉजी की पूरी डिटेल हिस्ट्री इन्होंने, पूरी पिक्चर निकाली जो अभी तक पढ़ाई जाती है। पब्लिक हेल्थ पे बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। पहली बार इन्होंने बताया कि स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जगह, हॉस्पिटल में वेंटिलेशन, ये सब की बातें की डॉक्टर हनीमैन ने, उसको फिर वहां की गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। और साइकियाट्री के ऊपर बहुत काम किया डॉक्टर हनीमैन ने। उस समय जो मेंटली इल लोग थे, जंजीरों में बांधा जाता था, उनको बुरी स्थिति थी, गंदे जगह पर रखता था, डॉक्टर हनीमैन ने बिल्कुल विरोध किया और उनके लिए बहुत काम किया, और उनकी दवाइयां उन्होंने उस हिसाब से किया। तो साइकियाट्री के ऊपर, फार्मेसी का तो पूरा खोज ही किया उन्होंने, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन और फार्मेसी की। तो 5 डिपार्टमेंट तो मेडिकल साइंस के, इसके अलावा 2 डिपार्टमेंट पे और उनका महारत था। केमिस्ट्री, काफी चीजों की उन्होंने मेटलर्जी खोजी है। जैसे मैं बताऊं सिंपल, केवल आर्सेनिक की पूरी पॉइजनिंग, पूरी मेटलर्जी। उस समय मरकरी प्योर फॉर्म में नहीं मिल पाता था, मरकरी को सबसे शुद्ध बनाने का तरीका डॉक्टर हनीमैन ने खोजा, जो अभी तक मान्य है। और लेड पॉइजनिंग होती थी वाइन में, उस समय खूब होती थी, लेड पॉइजनिंग को डिटेक्ट करने का बहुत सिंपल तरीका बताया और कैसे रिमूव किया जाए। तो इस तरह से डॉक्टर हनीमैन के इतने काम, उनके फ्रेंड्स जो होते थे उस समय के, वो बोलते थे कि डॉक्टर हनीमैन इज 2 हेड मैन, 2 सिर वाला आदमी है, क्योंकि एक सिर वाला आदमी तो इतना काम कर ही नहीं सकता। तो अभी हम थोड़ा सा और बताते हैं सर कि होम्योपैथी का क्या डॉक्टर हनीमैन ने उस समय किया। उनके दौरान कई महामारियां फैली, जिसमें जैसे जो सबसे पॉपुलर है 1813 का टाइफस की एक एपिडेमिक आई थी। डॉक्टर हनीमैन ने 283 पेशेंट को ठीक किया था, कोई भी डेथ नहीं हुई थी, केवल होम्योपैथी से।
और उसमें दवाइयां क्या निकली, केवल 2 दवाई, ओब्रानिया और एस्ट्रैक्स के सिम्टम थे उसी पे दे देके। फिर 1831 में कॉलरा का आउटब्रेक हुआ था, बहुत भयानक। 260 पेशेंट ट्रीट किया था डॉक्टर हनीमैन ने अपनी होम्योपैथी से, और उन्होंने केवल कैम्फर दवाई वहां निकाली थी। जीनस एपिडेमिकस, जीनस एपिडेमिकस क्या होता है सर, कि जब कोई महामारी फैलती है तो उसमें से लगातार पेशेंट देखते हैं, तो पिक्चर देखते देखते इमेज आ जाती है कि ये पेशेंट, तो जो मेडिसिन निकल के, जैसे कोरोना में भी आर्सेनिक निकला था, तो आर्सेनिक को हम एक तो क्यूरेटिव दे भी रहे पेशेंट को, और प्रिवेंशन के लिए भी दे देते हैं। तो जिसको नहीं हुआ है वो भी इससे बच जाएगा। ऐसे 1801 में, मैं भूल गया बताने, 1801 में स्कारलेट फीवर का पूरा आउटब्रेक हुआ था। इन्होंने बेलाडोना से, सिंपल बेलाडोना से उसको रोकथाम की थी, और केवल 2 पेशेंट मरे थे। इन्होंने 300 के आसपास पेशेंट को दिया था। तो कितना बड़ा रोल इनका सर है कि होम्योपैथिक में। और हम लोग आज बहुत क्या बोला जाए, थैंकफुल है डॉक्टर हनीमैन के लिए, कि ऐसे महान विभूति को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है सर। इनके जो फॉलो अप में आए सर, बहुत थोड़ा आभार। सा 5 मिनट समय सर मिलेगा, 5 मिनट? वो अश्विनी जी बार बार जुड़ रहे हैं, शिलोंग अच्छा में अच्छा, है वो एक्चुअली। ठीक है, नहीं सर, ठीक है, अभी तो बोलने को बहुत है, कोई बात नहीं सर। तो मेरी तरफ से नहीं इतना नहीं, ही मैं था। आपको बुलाता रहूंगा, कोई बात नहीं। नहीं, आप मुझे बड़े शानदार स्पीकर मिले बड़े देर में। अरे नहीं सर, आप सबका आशीर्वाद है, मैं आपसे ही सीखता हूँ सब कुछ। कल धन्यवाद पार्कन सर। नहीं, पहले तो कल का निमंत्रण आप लोगों को मैं दे दे रहा हूँ, अभी से बिल्कुल बिल्कुल चारों सर, को मैं दे आऊंगा। रहा हूँ। कल पार्कन सिज्म पे है, 9 बजे बिल्कुल से। सर, तैयारी कल करते हैं सर। पार्कन सिज्म डे है। तो मैं, जी, आप यदि आज्ञा दें तो अश्विनी कुमार द्विवेदी जी को मैं बुलाऊं। प्लीज सर। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वेलकम। वेलकम डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी जी, वेलकम। कहाँ है थैंक प्रभु, यू। कहाँ चले जाते हैं छोड़ के? अरे मंत्रालय जहाँ भेज देता है जाना पड़ता है ना, क्या करें। मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे हैं ना। हाँ, यहाँ पर शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न आयुर्वेदा और होम्योपैथी का संस्थान बनाया 2016 में। गया था मैं, 2 बार हो आया। अच्छा, 2 बार हुआ है। बहुत बढ़िया जगह है, जगह तो स्वर्ग ही है समझ लीजिए। स्वर्ग है, स्वर्ग है। अरे द्विवेदी सर प्रणाम। जी प्रणाम भाई, अभी सुन रहा था, बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे थे। शर्मा जी ने अरे बीच में टोक दिया आपको जबरदस्ती। नहीं, वो आप बेचारे तीन अरे चार बार निकल गए थे तो मैंने कहा अरे डर तो के मारे, मैं लेकिन तो राकेश जी को सुनूंगा मैं। मैं तो आखिरी में शुभकामना संदेश दे ही देता कैसे भी करके। अरे नहीं, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर आपको साहब सुनना ने बहुत अच्छा लगता है सर द्विवेदी सर। आप आदरणीय तो जी, बहुत। अपना टॉपिक स्टार्ट कीजिए डिस्कशन सर बाद में। सर मेरा टॉपिक सिर्फ इतना ही है कि भारतीय होम्योपैथी विश्व में अग्रणी कैसे हो सकती है। आप दोनों को मैं सुन रहा था बहुत अच्छे से, बीच बीच में हालांकि डिस्कनेक्ट हो रहा था। आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया कि ऑर्गेनान में फिलोसफिकल बैकग्राउंड क्या है और कैसे ट्रीटमेंट उस टाइम में होता था। मेरा सिर्फ एकमात्र कंसर्न है, जो आयुष मंत्रालय भी जिसके लिए चिंतित है, हम लोग जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यदि वो आपका फिलोसफिकल बैकग्राउंड भी है, तो ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन को प्रयोग में करते हुए हम कितने रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं। जो भाषा आज का समय के साइंटिस्ट समझते हैं, उस भाषा में हमको उनको समझाना पड़ेगा। उसके लिए अधिक से अधिक रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ेगा, तभी विश्व में हमारी जो ख्याति है वो बनी रहेगी। अभी केवल हम ये बात करते हैं कि होम्योपैथी पॉपुलैरिटी के दृष्टिकोण से विश्व में नंबर 1 पर है। होम्योपैथी का जो यूजेज है वो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये सरल चिकित्सा प्रणाली है, सस्ती चिकित्सा प्रणाली है, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन उससे आगे आकर के जहाँ पर बोन मैरो में या जहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, आज कैंसर में लोग बात करते हैं कि हम 1 डोज आर्सेनिक दिया और कैंसर ठीक हो गया, तो उसका बिफोर एंड आफ्टर आपको एमआरआई रिपोर्ट या जहाँ पे भी कैंसर प्रूवन था उसको बताना पड़ेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ेगा। सिंह साहब बात कर रहे थे कि
symptoms are outwardly reflected picture of internal essence of disease। तो डिसीज को भी आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि जो मरीज आता है वो प्रॉपर डायग्नोसिस लेकर के आता है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में बात करेंगे केवल फिलॉसफी की तो नहीं चलेगा। अगर उसको सीकेडी है और उसका क्रिएटिनिन 12-13 आ रहा है तो 12-13 क्रिएटिनिन है, उसका कारण भी ढूंढना पड़ेगा, उसका निवारण भी ढूंढना पड़ेगा। जैसे आपने बात किया कि हमको एक्साइटिंग काज और मेंटेनिंग काज ढूंढना पड़ेगा, तो उसका रिमूवल तभी हो सकेगा। हेनीमैन जी ने बोला कि जब तक आप रिमूवल ऑफ द कॉज नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि क्रिएटिनिन 1.3 नॉर्मल है और किसी का 4, 5, 8, 10, 15, 20, 22 तक क्रिएटिनिन मेरे पास लेकर के आ गए लोग। तो आखिर इतना क्यों बढ़ रहा है, उसको डिसीज को भी हमको समझना पड़ेगा। आज मैं यहाँ शिलांग में यही बात कर रहा था कि आयुष मंत्रालय हमारे सिस्टम को बेटर करने में लगा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि हम शिक्षकों को ही एमआरआई देखना नहीं आता है, एक्सरे देखना कई लोगों को नहीं आता है, सीटी स्कैन नहीं समझता है, तो हम उसकी तरफ जाते नहीं हैं। तो संस्थानों में जब ये सुविधाएं परिपूर्ण होंगी, शिक्षक भी अपने आप को अपग्रेड करेगा समय के अनुसार, तब हम इसकी भी बात करेंगे। यदि हेनीमैन के टाइम में ये सारी विधियां रही होती, पैथोलॉजी रही होती, एक्सरे रहा होता, सीटी स्कैन रहा होता, एमआरआई रहा होता, तो उन्होंने अपने ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन में उसकी फाइंडिंग्स भी लिखी होती। ये इतनी अच्छी साइंस है कि उस समय 1796 में लिखा हुआ बात को आज तक लोग काट नहीं पा रहे हैं। जबकि अभी कोरोना की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, कोरोना में दूसरे चिकित्सा पद्धति वालों ने एक बार बोला प्लाज्मा देना है, दूसरी बार बोला दूसरी मेडिसिन देना है, वो अपनी मेडिसिन को फटाफट काटते जा रहे थे कि नहीं इसमें ये नहीं करना है। और आज हम 1796 में लिखी मटेरिया मेडिका या ऑर्गेनान से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उस समय यदि ये मॉडर्न टूल्स रहे होते तो ये भी हमारे लिटरेचर में रहे होते। आवश्यकता है दोनों को साथ में लेकर के जो समय है उसके अनुसार उसके अनुकूल लोगों को समझाने की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है या हमारा जो सिद्धांत है वो गलत है। हमारा सिद्धांत बिल्कुल सही है, उस सिद्धांत पे हम लोग ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन उसको मॉडर्नाइजेशन और जो इन्वेस्टिगेशन टूल है उसको अपना करके साइंटिफिक वैलिडेशन की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिकेशन की जरूरत है, जिससे हम हमारे साइंस को वास्तव में साइंटिफिक बता सके। इसी के साथ मैं सभी को विश्व होम्योपैथी दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और सभी को गुड नाइट भी करता हूं। थैंक यू शर्मा जी। थैंक यू जी। मैं आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह सर से कंक्लूडिंग रिमार्क्स की प्रार्थना करता हूँ। कल पार्किंसंस पे आप चारों का स्वागत करूंगा मैं, इतनी प्रार्थना है। नहीं, मैं तो रास्ते में रहूंगा कल। जय हो जय हो। क्या करें यार, कहाँ चले गए तुम? आज आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। होम्योपैथी के लिए डॉक्टर द्विवेदी ने जैसा कहा, कंक्लूजन ये है कि इस साइंस को एविडेंस बेस्ड लाने के लिए, साइंटिफिसिटी के लिए हमें कैसे प्रयास करना होगा। हमें उसको आने के लिए रिसर्च पद्धति पे जाना होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी को अपनाना होगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। किंतु उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के ही चलना होगा। मूलभूत सिद्धांतों में जो लिखा गया है, क्योंकि डॉक्टर गुप्ता ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया उस समय आर्सेनिक पर, मर्क्यूरी पर, नक्स भूमिका पर, जैसा कि उसमें प्रूविंग की गई थी। उस समय के परिवेश में उनकी प्रूविंग सटीक मानी गई, जो आज भी मानी जा रही है। सवाल इतना है कि आज के परिवेश को देखते हुए जो हमारे साइंटिस्ट, जो रिसर्चर जैसा चाह रहे हैं, वैसी स्थिति को समझने के लिए मेरा एक चिंतन इस पे जरूर है। कंक्लूजन में कहना चाहूंगा कि जितने लिटरेचर लिखे गए हैं, चाहे वो कॉन्स्टेंटाइन पी हेरिंग्स हो, ये फेरिंगटन हो, विलियम बोरिक हो,
सारे अगर चार्ट उठा करके उनके सिम्टम्स को देखें, आयरिडोसाइक्लाइटिस लिखा है, इसका मतलब कि होम्योपैथी साइंटिफिकली काम किया गया है। इस पर ध्यान देना होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहना होगा कि इसमें ऐसा नहीं करना, ये प्लेसिबो है। हमें उस पर भी जाना होगा, उस क्वांटम थियरी पर भी जाना होगा। हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी थोड़े से परिवर्तन की आवश्यकता होगी। क्लिनिकल पेपर, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ये सब बहुत आवश्यक है, ये मैं एग्री करता हूँ। इसमें होम्योपैथ को समझाना होगा। अब रही बात एक कई कई संस्थानों में टीचर्स को अपडेट करना होगा। किसी को भी, अभी टीचर्स की बात नहीं हो, कोई भी पैथी हो, उसके चिकित्सक को उस विधा को अपडेट करने के लिए हमें सबको मिलकर के काम करना होगा। हमारा सिस्टम तब आएगा। और भारत सरकार को तो इसलिए धन्यवाद देना होगा कि आयुष मंत्रालय ने आयुष को अलग किया। कोरोना को थैंक्स देना होगा कि तब आयुर्वेद और होम्योपैथी उभर करके सामने आया। तो आयुष आया तो उसको हमें मिल करके समन्वय चिकित्सा की जरूरत है। आज की आवश्यकता है कि कहाँ आयुर्वेद काम कर रहा है, कहाँ होम्योपैथी काम कर रही, कहाँ एलोपैथी काम कर रही। वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी को लेकर के अगर एक एलोपैथ चिकित्सक ज्यादा जानकार है, साइंटिफिक सिटी है, तो हमारे सिद्धांतों को पढ़े, हमारी मटेरिया मेडिका को पढ़े। आज हम बिथानिया सोमनीफेरा की बात करते हैं, अश्वगंधा, राउल्फिया सर्पेंटाइना की बात करते हैं, तो डिजिटेलिन तो डिजिटेलिस से बनाया गया ना, उसकी प्रूविंग तो हुई है ना, वो मेन प्लांट है ना। इसको उनको भी स्वीकार करके रिसर्च अपडेशन में आना होगा। आज के परिवेश में, आज के दिन मैं इतना ही पूरी बात को कंक्लूड करना चाहूंगा। मास्टर हनीमैन ने जो जितनी अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वैसे ही मेहनत हम सबको करने की जरूरत है। होम्योपैथी सबके बीच में मान्यता बढ़े और सारे सिस्टम, सारे चिकित्सा विधा एक साथ मिल करके एक प्लेटफॉर्म पर काम करें। ऐसा करेंगे तो शायद चिकित्सा विधा का स्वरूप बिल्कुल कुछ समय बाद बदलेगा। और मरीज, हमारा एक ही काम है, मरीज, हमें मरीज को ठीक करना हमारा एक ही काम है। तो हमें सब मिल करके काम करना होगा। ये मोटो लेकर के चलेंगे तो हम चिकित्सक अच्छे रूप में, व्यापक रूप में माने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी तो इतने इनका सबको जोड़ने का काम रहता है, सबको जोड़ते रहते हैं, चाहे वो भारत का कोई कोना क्यों ना हो, विदेश का कोना क्यों ना हो, मैंने तो देखा है। तो आदरणीय शर्मा जी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी हमारे होम्योपैथ को, डॉक्टर गुप्ता को, डॉक्टर लुबाना को, आदरणीय साहनी जी, सभी को, हमारे प्रिय डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी को, सबको बहुत शिलोंग से चलते हुए रास्ते में, कल रास्ते में रहेंगे, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। थैंक यू सर। बहुत आभार सर, थैंक यू। बहुत बहुत आभार। मैं तो ये जानता हूँ कलकत्ता का जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है, विश्वास मानिए किसी आयुर्वेदिक कॉलेज में भी इतनी भीड़ नहीं होती जितनी पेशेंटों की वहां भीड़ होती है। जी ना मेडिकल जी कॉलेजों आयुर्वेदिक में भी नहीं कॉलेज और ना होती। मेडिकल कॉलेज, यस, वहां भी जी नहीं होती। जी बिल्कुल सही बात। बहुत गजब भीड़ होती है सर। सही जी बात। सर, जी एक मिनट समय देंगे सर? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आप, अरे मालिक, आप हाँ, लोगों का ही तो। द्विवेदी सर है तो एक थोड़ा शिकायत भी करनी है मंत्रालय के लिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक गूगल पे आप सर्च करें तो प्लेसबो की थेरेपी की बात आती है, होम्योपैथिक स्यूडो साइंस, इसको मंत्रालय क्यों नहीं रिमूव कर पा रहा है? ये मतलब